Assalamu alaikum to all of you. Welcome to MM Coaching Center, Noaksha. I am Sir Mubashir Hussain Malik, and today we are going to understand the interesting concept of physics. Have you ever noticed a person who is sitting in a moving bus looks at rest, but actually he is moving? So, is he at rest or in motion? Today we will uncover this mystery. So without wasting time, we will move to our topic, that is motion and rest. Okay, if you will find this video helpful, so don't forget to like, comment and subscribe to the channel. And if you have an idea and you want to be successful, so also share it with your friends also. Thank you so much. Without wasting time, we will move to our topic, that is motion and rest. So the first question arising here, what is motion? Motion is the change in position of an object with respect to time and its surrounding. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ एंड अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, देन हम उस बॉडी को कहते हैं इट इज इन मोशन. फॉर एग्जाम्पल, if a car moves its place, one place to another place with respect to time and its surrounding, then we will call the car is in motion. अगर एक कार 5 मिनट पहले यहां खड़ी होती है, आफ्टर 5 मिनट यही कार मूव कर यहां आ जाती है, एंड आफ्टर दैट आफ्टर 5 मिनट्स आल्सो ये कार यहां से मूव कर यहां चली जाती है. इट मीन्स ये जो कार है ये टाइम के साथ साथ अपनी प्लेस चेंज कर रही है एंड आल्सो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग भी जगह चेंज कर रही है. सो वी विल कॉल द कार इज इन मोशन. इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं. सो यू हैव टू राइट दिस. स्टॉप करो जरा. मोशन इज motion is a change in position of an object with respect to time and its surrounding. ओके, मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन. मोशन एक पोजिशन का चेंज होना किसके अकॉर्डिंग? ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. किसके अकॉर्डिंग? टाइम के हिसाब से एंड उसकी सराउंडिंग के हिसाब से. देन वी विल कॉल्ड इट इज इन मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसे कह देंगे ये मोशन में है. एग्जाम्पल, ए मूविंग कार. इसी तरह के एग्जाम्पल आप clearing the concept of motion, we will move our next topic, that is rest. What is rest? If an object does not change its position with respect to its surrounding. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो हम उसे कहते हैं इट इज इन रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, दिस मार्कर इज laying on my hand. It doesn't changing its place with respect to its surrounding, so it means it is in rest. But wait, is it really? No. Wait, I will tell you at last. So I am going to write its definition, so we have to write this. An object
an object which does not change its position with respect to its surrounding. Respect to its surrounding. With respect to its surrounding. That's called in motion. After that, like as example, a book lying on the table. फॉर एग्जाम्पल एक टेबल एक जो टेबल बुक है वो टेबल पर रखा हुआ है. इट मीन्स इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. इट मीन्स इट इज इन रेस्ट. सिंपल. And first thing which I said, that is motion and rest are not absolute. These are relative. What is absolute and what is relative? I will clear your concept and understanding. So before moving this point, and I will teach this point clearly and conceptually. So I am going to remove it. After removing this, I will teach you. Okay, I am going to remove it. Okay, right now I am going to start that. Motion and rest are not absolute, they are relative. What is absolute? Absolute. And what is relative? What is absolute and what is relative? Absolute means something that is fixed for everyone and everywhere. एब्सोल्यूट का मतलब होता है समथिंग दैट इज फिक्स, जो कि फिक्स हो, जो कहीं भी चेंज ना हो, ना किसी के लिए चेंज हो, ना कहीं भी चेंज हो, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट. मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना है. अगर हम किसी एक वैल्यू को कहते हैं दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, मींस इट इज द सेम फॉर ऑल एंड फॉर ऑल क्लासेस. लाइक अगर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ग्रेविटी, एक स्मॉल जी होती है, सेकंड हमारे पास कैपिटल जी होती है. ये हमारे पास रिलेटिव होती है, चेंज हो जाती है हर जगह. या आप से कह सकते हो वेरिएबल होती है, मतलब कि चेंजेबल होती है. अर्थ पर ये इसकी वैल्यू चेंज होती है लाइक 9.8 मीटर पर सेकंड, एंड मून पर उसकी चेंज होगी. मतलब डिफरेंट प्लेसेस पर चेंज होना. तो ये मतलब ये वाली जी एक एब्सोल्यूट वैल्यू वाली जी नहीं है. बट अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये वाली हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है. ये चाहे आप अर्थ पर हैं, चाहे आप मून पर हैं, कहीं आप चला जाए, आपके लिए ये वैल्यू एब्सोल्यूट करार दी गई है. इट मींस दैट इज फिक्स्ड फॉर एवरीवन एंड फॉर एवरीवेयर. ये कहीं भी आप जाओ, कोई भी हो, ये आपकी वैल्यू फिक्स रहेगी. लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए ये चेंज होती रहेगी. सही. तो एब्सोल्यूट का आई होप के कॉन्सेप्ट समझ आ गया होता है क्या होता है. एंड रिलेटिव किसे कहते हैं? Relative means something that depends on the observer. What is relative? Something that depends on the observer. कुछ वो चीज जो डिपेंड करे कि ऑब्जर्वर, कि हमें ऑब्जर्व किस पोजीशन से किया जा रहा है और कहां से किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव. एब्सोल्यूट मतलब कहीं से कर रहे हैं आप, बैठकर, यहां से अर्थ से कर रहे हैं, मून से कर रहे हैं, सन से कर रहे हैं, जहां से कर रहे हैं, वैल्यू अगर सेम है हर एक पोजीशन पर तो वो आप कहते हैं एब्सोल्यूट. और अगर चेंज हो रही है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, यहां बैठकर देख रहा है या बाहर खड़ा होकर देख रहा है या मून से हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये चीजें डिपेंड करती हैं रिलेटिव के अंदर. एब्सोल्यूट में कहीं से देखो वैल्यू चेंज नहीं होगी. सो
मैंने ये पॉइंट कही थी, मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट। मैंने कहा था मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर रिलेटिव। मोशन और रेस्ट आपस में एब्सोल्यूट नहीं होते हैं बट दे आर रिलेटिव, पर वो रिलेटिव होते हैं। सर समझ नहीं आया, उम्मीद है कि समझ नहीं आया होगा कि कौन से समझाना बाकी है। देखें, एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा कि मोशन और रेस्ट आपस में एब्सोल्यूट नहीं होते हैं बट दे आर रिलेटिव, पर ये एक दूसरे के साथ रिलेटिव होते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैठे हुए हैं एक मूविंग बस के अंदर, अभी मैं एक बस के अंदर बैठा हूं, आई एम सिटिंग इनसाइड द बस। सो जो बंदा मेरे आगे बैठा हुआ है, जो मेरा बंदा आगे बैठा हुआ है, तो मैं उसके लिए एक रेस्ट हूं इनसाइड द बस। मेरी अभी इस वक्त जब मैं एक बस के अंदर बैठा हूं तो इस वक्त मेरी सराउंडिंग क्या है? जो मेरी बस है, ये मेरी सराउंडिंग है, इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं। सो इट मींस आई एम एट रेस्ट। अभी जो ऑब्जर्वर जो मेरे आगे बैठा हुआ है, मुझे वो ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या ये सराउंडिंग के हिसाब से या टाइमिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये मोशन में होगा, अगर नहीं कर रहा है तो ये नहीं होगा। इट मींस मैं बैठा हूं, आई एम एट रेस्ट, सो उसके जो मेरे ऑब्जर्वर का बस में बैठकर मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए मैं एक रेस्ट हूं। अभी यही एक और ऑब्जर्वर मौजूद है, हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, मींस आउटसाइड द बस। एक रोड पर खड़ा होकर ऑब्जर्वर मुझे जज कर रहा है एंड ऑब्जर्व कर रहा है कि यहीं पर हम ये देखें कि एक बंदा जो ऑब्जर्व कर रहा है हमें, बिकॉज आई एम इन द बस, में बस के अंदर मौजूद हूं, बैठा हूं, एट रेस्ट हूं। एक बंदा बस के बाहर खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन द रोड। अभी वो मुझे रोड पर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो हूं मूव कर रहा हूं। वाई आई एम मूविंग राइट नाउ? बिकॉज बस इज मूविंग, क्योंकि बस मूव कर रही है, बिकॉज ऑफ दैट उस ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग मैं भी मूव कर रहा हूं। ये था रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट। कि देखें, अगर मैं कहता हूं दिस मार्कर इज लाइंग ऑन माई हैंड एंड इट इज रेस्ट, ये रेस्ट में, तो ये अभी आपको लग रहा है कि रेस्ट में है, बट अगर इसी मार्कर को और मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूं मून पर बैठकर, कोई ऑब्जर्वर है जो मुझे मून पर बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैं अभी आपके लिए तो मैं इस वक्त एक रेस्ट हूं, लेकिन वही ऑब्जर्वर अगर मुझे मून पर बैठकर देख रहा है तो मैं इस वक्त रेस्ट में नहीं हूं। क्यों? मून पर जब बैठकर ऑब्जर्व करूंगा तो वहां से ये मुझे रियलाइज होगा कि अर्थ कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ। तो इट मींस जब अर्थ मूव कर रही है तो मैं भी मूव कर रहा हूं। तो ये होता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। तो यहां से आई थिंक क्लियर होगी आपको कॉन्सेप्ट कि कोई भी बॉडी हमेशा रेस्ट में नहीं होती है, कोई भी बॉडी हमेशा मोशन में नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। ये डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्वर से कहां से कर रहे हैं, किस पोजीशन से कर रहे हैं, ये आपको डिसाइड करके बताता है कि बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन। इसका ये कॉन्सेप्ट था, मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट। ये हमेशा ऐसा नहीं है मोशन मोशन नहीं होती है, एक बॉडी मूव करे तो वो बस मोशन नहीं है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में, ऐसा नहीं है, बिकॉज दीज आर रिलेटिव। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के हिसाब से। तो इस वजह से मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर रिलेटिव। ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं बट ये रिलेटिव होते हैं। और होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट रेस्ट इन मोशन का आपको क्रिस्टल क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज एक लेक्चर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे लिए आपका लाइक, आपके कमेंट्स, आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, दैट विल प्रोवाइड अस एनर्जी to make more lectures, to give more like helpful videos, to making helpful videos more and more for you. So don't forget to like our videos and subscribe to our channel. Thanks a lot for watching our videos. Connect with us for more helpful videos. See you in the next video.